Thank you for doing this. And let me tell you, I have to, that he had agreed to do this with just one message. So I love you for that. The sweetest, the coolest, and possibly the one who will always make everybody around them feel comfortable. Thank you for doing this, sir. Shukriya, genuinely. Thank you. हमने आपका teaser play किया है. You should have been here to see the reaction. How did you guys like the animal teaser and him in the... Did you even apprehend कि ऐसा होगा? मतलब there's one scene which is like 5 seconds and I think everybody is only talking about that what is he playing? और लोगों यहाँ पे भी ये लोगों ने पूछा कि क्या play कर रहे हैं? If you can tell anything about that first. Well, it's really nice to see all of you here today. I mean, it's quite overwhelming for me. I'm not used to doing interviews like this. Everyone's sitting and watching me. But मैं कुछ ज़्यादा बोल तो नहीं सकता फिल्म के बारे में. As you all know, we can't. But I was just very lucky that I got to be a part of Animal. Always loved Sandeep's work. He's the only director who's made the same film twice and succeeded both the times. That's true. So when I was offered this film, it's like I've been trying to do different kinds of characters, and I've said that in all my interviews that I'm trying to break my image and get challenged and be as an actor, be in a very uncomfortable place where it makes me do the best I can. So I was really glad, and I thank God, and hard work always pays off eventually. So I can't tell you anything about the films. I've spoken so much other things, but it's just I was really happy because I didn't, I'm a big fan of Ranbir Kapoor. I mean, if there's any two actors I'm a big fan of, is Ranbir and Alia, and they're married to each other. So I was very excited when I knew that Ranbir would be playing the main lead, and it was going to be amazing working with him because I always loved his work. So in this film, you can make out it's an emotional, violent drama with love, romance, and hate. And I think it is just going to be one of those kinds of films which Sandeep brings out different elements in characterization which is so different from other filmmakers. So I guess in that shot, when I was doing that shot, I had not even seen the monitor. We were in a hurry to finish that moment, and I saw the shot for the first time when I saw the teaser, and I was like, what? This is me? Bloody hell. I was like, okay, I was tasting something in my mouth. And it was a fun moment, and I'm so glad. I mean, the response I've got for that one shot, it's just been amazing. It just shows that people, the audiences, want to see me in something different. Absolutely. And they're really excited to see that I look different, and they want to know what I'm doing in that shot. But as I said, I can't really tell you. I'm definitely eating something in it. But eating something? I'm chewing something, I think. But I want to ask you that after that, ये जो teaser launch हुआ, okay, and that comes right in the end. Have you read the comments that have come only for that particular scene? I have, actually, I mean, God has been really kind to us. This year has been amazing for us. It started with my nephew Karan's wedding, and we got a daughter in our family because it's a family full of boys, and now we have a daughter. She brought so much luck to us, and people just, my family's always been loved. Thank you to my dad, my papa. He's like, everybody loves him, and the love we get because of him. And I think my brother, Gadar, it's just been... So it's just been a special year, and my nephews, this is the first time, I don't know if it's in the history of film industry, our industry, that 3 generations have come together in 1 year. It started with my dad, who was amazing, and I mean, no one else could have done that role. I mean, the way he brought that character to life, and the way he performed, it was just magical. And then my brother's film came, then my nephew Rajveer's film came, and now yours is coming. Yeah, now the Chacha's film is coming. Yeah.
you this that because हम लोग तो I've always said this. I've always started all my interviews saying that I'm a 90s kid. So for any 90s kid, you're an emotion. I think you brought in that cool dude, you know, image. कि अच्छा sunglasses. कितने sunglasses थे आपके पास? कितने लोगों को पसंद था the sunglasses and the look and the jacket? I mean, you know, when I was growing up, I used to see my dad's photographs and movies, and he used to wear these amazing sunglasses. And I think उस वक्त से मुझे एक obsession हो गई थी sunglasses के लिए, तो मैं उनके कबर्ड में जाता था ढूंढने के वो चश्मा कहीं पड़ा होगा तो पहन के देखता हूँ कैसे लगता है मुझ पर, लेकिन वो चश्मे कभी होते नहीं थे। मुझे लगता है वो फिल्मों में पहनते थे और वहीं उतार के दे देते थे। तो मैंने सोच लिया कि मैंने जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी कलेक्शन बनाऊंगा चश्मों की। So it started with that, और मुझे आज भी याद है जब मैं बरसात कर रहा था तो मेरे पास एक चश्मा था पर्पल कलर का, मैं बहुत चाहता था कि मैं पहनूं गाने के अंदर, लेकिन राज संतोष जी was like नहीं। And luckily Santosh Shivan was my cinematographer, so मैंने उसको कहा कि Santosh, what do you think about these sunglasses? And oh, very cool. I said, can I wear them? Yeah, you should. And that's how it happened. But I never thought it'll become a rage, you know, because I guess I never tried to put that I mean, I was just being myself. And I think my long hair, which I had, I mean, I've always loved long hair. I've got it back right now, but it's just been something I loved, you know, and I never thought that I'd be out of place in this industry with the way I look, because that's what makes you more, I guess, that's why you like the way I look, because I was just normal about it, you know, I didn't really put any effort thinking of how I'm going to dress up or not. And so, I mean, now my sons, I have 2 boys, and I wanted them to grow their hair long, but they didn't like it. But जब कोविड हुआ तो कोई बाल काटने तो जा नहीं सकता था, तो मैंने अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर ली, मेरे बच्चों के लंबे बाल हो गए थे. And I was really happy to see them with long hair. I just wanted to see, because your kids look a little like you know, a little bit here and there, so you just want to see yourself again looking young. And but I've been really lucky thanks to, I mean, I love cinema. I mean, there's no magic that cinema creates, but OTT has been really great to me. Absolutely. You know, I was trying to break my image, and it has been very difficult, but I was offered Class of '83, and I was like, no, I was looking for something like this, and I guess they can, you know, I was, yes, I'll do it. And I think it's my journey of being taken seriously as an actor, I think, began from Class of '83. Because every actor wants to be understood as an actor. It's very difficult. We all think that we're good actors, you know. Why do people don't see that in you? But I guess somewhere you take the wrong steps and you do films which doesn't really give you the opportunity to perform the way you want to. And you grow with every film you do. I've been in this industry 28 years now, so I've learned a lot and I'm still learning. And so then Ashram came. I mean, when मैंने जब आश्रम की थी, जब नाम बाबा जी की सदाई। जब मैंने आश्रम साइन कर रहा था तो मुझे फोन कॉल आया, श्रुति करके कास्टिंग एजेंट है, उन्होंने फोन किया कि Bobby, I've got this character for you, this project for you basically, and Prakash Jha is doing it. And I was like really excited, you know, like, चलो सिनेमा में तो काम नहीं करने को मिला उनके साथ, लेकिन OTT पे मिल रहा है, तो मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थोड़ी सी, और फिर मैं सोचा चलो सुन रहा हूँ, तो मेरे को लगा चलो उसमें पुलिस ऑफिसर जो दर्शन ने किया है, I thought I'll be offered that role, because you know how it is, you didn't expect to be offered, and then suddenly says, मैं चाहता हूँ कि आप बाबा का रोल प्ले करें. I'm like, hello, am I hearing the right thing? You know, I was like, wow, I mean. So that's how it happened, and I really worked hard for it because I had to speak the way he spoke, and I had to understand every word I said. So I sat with this lady called Sunita ji, who sat with me patiently every day for three hours for like 2 months. And it worked, and then the thing I forgot to tell you is that when I signed it, I didn't tell my mummy, papa or my brother. Because मुझे लगा कि उनको कहूँगा कि मैं ऐसा रोल प्ले कर रहा हूँ तो बोलेंगे क्यों कर रहा है ऐसा रोल, क्योंकि होता है, you know. But I wanted to play something different. I'm portraying as an actor characters which exist amongst us, and
you have to kind of bring it to light and let the world know that these are the people who exist and you should be wary of them. And I think after doing that show, the love I got for playing a negative character, I was like completely blown away with the love I got from everyone I go, wherever I go, even till date. It's just been amazing, and I think, so it's been great, you know, OTT has given me this It's Bobby 2.0, you know, that's what we call it. It's Bobby 2.0, and this, I think, very few actors actually get this opportunity, like you said. But, you know, sir, I want to take this opportunity to, I introduced saying that I want to bring out Bobby Deol, the human, because people have watched you on screen. So one thing I'm going to say, and everybody who has worked with him, whether it's, so my friends work with you. I have seen him forever, okay, your security, your own managers, and I have seen people who have met you. You can have a sense of entitlement because you're Dharamji's son, but you still don't. How do you manage to deviate from that? Because many people who are born with that kind of an empire can behave or can think that they can behave the way they want. But you've always, or you've never actually had that sense of entitlement. How? It's because I grew up, and you know, we all look up to our parents, and they are our heroes. And I've always looked up to my father, my mom, my grandmother, and especially my dad, because when he became such a big, huge star, he was still normal, you know, and I used to go out with him for shootings, I used to interact on sets with, I used to see other actors, and I used to see the way they were and the way my dad is, you know. Even though he was #1, he was always so humble. And that's what really attracted me to be an actor, is because whenever I used to see audiences and fans looking at him, they had this expression in their eyes which was only love. And I said, if I become an actor, I want that. I don't want to be anything beyond that, because, you know, it's more important to be a good human being and being loved by people than just being a star, you know, because at the end of the day, stardom doesn't last that long, and relationships always last longer. And I guess it's just the upbringing, you know. My dad always said, be a good human being first before you do anything in life, and be down to earth. And it's nothing I try to do. It's just inbuilt. I mean, my brother's like this. I mean, anyone in my family is like this. And it's not like I'm trying to boast about it. You're asking me, so I'm telling you. But it is true. It is genuinely true that every one of them, even Rajveer, I met Rajveer very recently, such a well brought up child. I feel that everybody, it's all about upbringing and conditioning, like you said. But here I will ask you a question. हमको तो बहुत बचपन में झाड़ पड़ती थी. मेरे मम्मी तो बहुत मारती थी मुझे. पापा ने उतना नहीं मारा, कभी नहीं डांटा. But I had a brother I still have a brother who's 10 years older than me. So you can see my father never scolded me so much, but उनकी कसर मेरे भाई ने पूरी कर दी. तो मुझे ये जानना है कि आपके घर पे सन्नी देओल थे, जिनको तो मतलब एकदम एंग्री यंग मैन के अवतार में हम सब ने देखा है. घर पे कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको मतलब झाड़वार पड़ी उनसे? Well, even my brother's almost 10 years older than me, और तो वो अपना हक जमाते थे मुझ पर बड़े होने का काफी. हाँ, सीरियसली. मतलब उनको, वो खुद पढ़ते नहीं थे, और मैं जब मेरी पढ़ाई की बात आती थी तो मुझे डांटते थे. देखो आता नहीं, ये नहीं आता, वो. मैं सोचता था यार भाई खुद तो पढ़ते नहीं तो मुझे क्यों डांटते. और वो चाहते थे, क्योंकि वो बड़े थे, कि मैं नहीं कर पाया तो मैं चाहता हूँ मेरा भाई करे. होता है ये बड़ों का है कि हम चाहते हैं कि हमारे छोटे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, पढ़े लिखें. पर वो सोच दिमाग में आती नहीं उस वक्त, क्योंकि हम तो कंपेयर करें ना, मेरा भाई है, मेरे पापा तो नहीं है. और लेकिन I was very lucky that my brother has been he's like a father to me. So I'm very blessed. Brothers are the best. It's true. It's true, because for me also in my life, all my decisions, मेरे पापा से ज़्यादा मेरे भाई को पता है. And yeah, and I feel that
he got emotional very recently at the Gadar Success Press Conference, talking about how he has also seen lows in life. How he and today when it's a celebration, the whole industry, the whole country has come out and celebrated you for Ashram and your brother for Gadar. Back home, हम लोगों को तो सिर्फ दिखता है कि आप एक family से हो जहाँ पे films would be the only mode of conversation or whatever, but it's very different because you live that life. Especially when you guys are going through lows in life, people are looking at you like celebrities. Sometimes when you look at people like that, you tend to overlook their vulnerable and emotional side. How did you and your family deal with their lows professionally? See, I think just because we're celebrities, so you think about our low points, but I think everybody in this world goes through ups and downs in their lives, and I think it's just a part of life, because I don't see anyone succeeding every day in whatever they want to achieve. So the only way to cope when you get into situations like this is not give up and never pity yourself. And that's the first thing human beings do, is pity themselves. They always say, when you stop thinking like that, you start realizing that अगर मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, मुझे खुद अपने पैरों पे खड़े होकर करना पड़ेगा. And then I have a beautiful family, and they give me that strength emotionally. But when it comes to your professional life, you have to have the strength to move forward. They can't keep supporting you. So that's how we always cope with things like that. And my brother's a very big-hearted man. He's always been there for me and the whole family. So during bad times, I remember him telling me, "Paul, now अभी हम मेहनत करेंगे, हमको ये सोचना दिमाग में कि हम कोई स्टार नहीं थे, हमको सीधा ज़मीन से फिर से ऊपर चढ़ना है." And I said, "हाँ भैया, मैं वैसे ही सोचता हूँ, पर still not that easy because our industry's got so much, there's so much competition." But देखा जाए तो हमारी population इतनी बढ़ गई है कि हर profession में competition ज़्यादा है. हमारी industry अकेले नहीं, लेकिन तो it's just been that's how we cope with things. But today, sir, which is your favorite Bobby Deol film? आश्रम तो अभी आई है, पुराना मैं बोल रहा हूँ. सोल्जर, बिच्छू, बरसात, अपने किस्मत. Now that we've got some of the names, मुझे ये जानना है कि हर एक एक्टर के करियर ग्राफ को अगर स्टडी किया जाए तो कुछ कुछ ऐसे लैंडमार्क मूवीज आते हैं, जैसे कि एवरीबॉडी इज लव्ड सम ऑफ द फिल्म्स. Which of these films जो आप करने वाले थे और आपको लोगों ने बोला कि मत कर, नहीं चलेगा, और आपने खुद के डिसीजन से किया? मैंने सारी फिल्में अपनी डिसीजन से की हैं. हाँ, मैं अपने पापा भैया के साथ एडवाइस लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे जब मैंने अपना करियर शुरू किया. लेकिन मैंने कभी ये नहीं उनकी बात सुनी, लेकिन जो मेरा दिल चाहता था मैंने वही किया. लेकिन लोग सोचते थे कि मैं वही करता हूँ जो मेरे भैया बोलते हैं या पापा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं था. तो जितनी भी मैंने डिसीजंस लिए हैं मेरी खुद की थी. और शुरू में डेफिनेटली जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था तो भैया आते थे कभी मेरे साथ बैठ के स्क्रिप्ट सुन लेते थे. लेकिन वो स्क्रिप्ट पता कौन सी थी? वो थी सोल्जर, गुप्त एंड ऐसी फिल्म है. तो मुझे तो उसमें कुछ था ही नहीं कि नहीं करनी. इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स थी. और so it's just been my decision. No one's ever told me not to do something. A lot of people actually लोगों को पता नहीं है कि आपकी डेब्यू एक साल पहले होने वाली थी, and that film also had its own journey in the beginning. And there were a lot of delays with your debut film. Yeah, मैंने काफी early शुरू की थी फिल्म. मतलब पहली फिल्म शेखर कपूर डायरेक्टर थे और हमने 27 दिन शूटिंग की थी. जब शूटिंग चल रही थी तो उनको हॉलीवुड से ऑफर आया कि एलिजाबेथ बनाने की. नहीं, सॉरी, वो तो बाद में बनाई थी. बैंडेड क्वीन के लिए आया था. तो पापा ने कहा कि शेखर ने कहा कि मैं ये कर लूँ फिल्म और फिर आकर कर लूँगा ये फिल्म बॉबी की. तो पापा ने कहा, देख मेरा बेटा है, मैं डिले नहीं करना चाहता, तो तू जा अपनी फिल्म कर, मैं कुछ किसी और को ढूंढता हूँ. और राज हमेशा वेट कर रहा था शायद मेरी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए. तो I was lucky I got Raj Santoshi. He was an amazing director, I think, one of his kind. And so it got delayed. So finally, I was 26 when my movie released. When I started shooting around when I was 22, I think.
and then I had to wait for a year or so before I started shooting again. Even then, it took 2 years to make. But was it difficult for you at that point because you were starting off? I mean, I was like, you know, the scripts kept changing when I was with Shekhar. एक script में मैं एक था एथलीट जैसा था मैं, तो मैं प्रियदर्शनी ग्राउंड जाता था, वहाँ पर एक इंडियन एथलेटिक कोच थे, उनसे जाके मैं सीखता था भागना, और मैं वो भागता था। मैं बोला यार ये मैं सब भाग रहे हैं आगे, मैं इतना फास्ट नहीं भाग पा रहा। फिर मैं बोलता था नहीं यार मैं तो एक्टर हूँ, मेरे को तो सिर्फ एक्ट करना है। तो मैंने रनिंग सीखी, फिर एक स्क्रिप्ट बनी जिसमें मेरे को ड्रम सीखना था, तो मैं मोहम्मद अली रोड गया ड्रम सेट खरीदने, ड्रम सीखा। आदेश श्रीवास्तव was no more, he taught me how to play the drum. I was so bad at that luckily the script changed again. फिर मैं एक मोटर बाइक स्टंट मैन की फिल्म कहानी बनी, तो मैंने हर दिन जो भी जाता था बाइक पे स्टंट सीखता था, जंपिंग ऑफ रैम्स एंड थिंग्स लाइक दैट। मुझे आज भी याद है सलमान की पहली फिल्म तब लगी थी मैंने प्यार किया, and he was so humble, and you know the first time I met him on the beach, और वो मेरे साथ आकर बाइक स्टंट्स करता था, फिर हॉर्स राइडिंग करता था वहाँ पर, तो हॉर्स राइडिंग भी करता था मेरे साथ। फिर स्क्रिप्ट बदलती गई, फिर मैं जगलर भी बन गया था एक स्क्रिप्ट में, मैंने जगलिंग भी सीख ली, 3 बॉल तक सीख गया, 4 बॉल पे पहुँचने वाला था कि स्क्रिप्ट बदल गई। But that was what was happening, and then yeah, it's frustrating because आप इतना चाह रहे हो कि आपको पहली फिल्म आ जाए, आप इतनी एनर्जी होती है, इतना इंथुसियाज्म होता है, लेकिन and you're very young. मैं कितना छोटा था तभी, मैं 21-22 साल का था, तो उस एज में आप you always like that mature, and you just want to go ahead, and it upsets you more at that age because you don't understand why the things are not happening the way they should. But then being in this industry is always going to be like that. No matter how many years you spend, you have to still, it's a struggle, and you have to not take it as a struggle. It's just part and parcel of how an actor has to live and go on his journey. That's true. There's a reason why I didn't ask him too many questions about Ashram, because I knew and I can sense it that a lot of you want to ask him questions because मैंने पहले ही पूछ लिया था. So where are the mics? And please raise your hands so that I can see, and we will. Can we pass the mic to him? Stand up, sir. Just introduce yourself and ask the question. Try to ask it a little quicker so that everybody gets a chance. Before you ask the question, score क्या हुआ है? Score क्या हो रहा है? 8 विकेट हो गए, 8 विकेट, 8 विकेट, 187, 187, स्कोर क्या है? 187. Oh, we are winning. It's fine. Great. चलो अभी पूछ सकते हैं. हेलो सर, श्वेता आवाज कर दो, और थैंक यू सो मच, ये मेरा ऑनर है कि मैं आपसे सवाल कर पा रहा हूँ. सर मेरा सवाल ये है कि आपने जितनी भी फिल्म की हैं या करते हैं, चाहे हमराज हो, अपने हो या कोई भी फिल्म हो, तो उनके रोल्स होते हैं या जो कैरेक्टर होते हैं उसकी आप तैयारी या प्रोसेस आप कैसे करते हैं, मतलब आप किस तरह तैयारी करते हैं, और जब आप सेट पर जाते हैं तो शॉट होने से पहले भी आप किस तरह की तैयारी करते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ. एज एन एक्टर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. मैं एक्चुअली क्या है कि उस वक्त ना जब मैंने करियर शुरू किया था और ये जितनी भी फिल्मों के नाम लिए आपने, उस वक्त डायलॉग्स कभी मिलते नहीं थे टाइम पर. वो जिस दिन शूटिंग पे जाओ तो उसी दिन सुबह वेट करो डायलॉग्स कब आएंगे, तो कभी वो चांस ही नहीं मिलता था कि कितना प्रिपेयर कर सकूँ. लेकिन आपको कहानी मालूम थी तो दिमाग में मेरे वही रहता था कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, और मैं बहुत स्पॉन्टेनियस था. जब मैं सेट पर था, जब कोई सीन करता था तो आई यूज्ड टू जस्ट रिएक्ट टू व्हाट आई फेल्ट, और इस तरीके से मैं आई वर्कड. आई मीन आई हैव नेवर हैड सम प्रोसेस, बट इवेंचुअली अभी आजकल का ज़माना बदल गया और काफ़ी वर्कशॉप्स करते हैं जो उनको उस वक्त भी करनी चाहिए थी. मैंने शुरुआत में बस एक बार ही वर्कशॉप्स की थी ऐसे करीब फिल्म के लिए. विनोद चोपड़ा के साथ मैं बैठता था हर दिन शाम को, और हम लोग सीन्स पढ़ते थे और परफॉर्म करते थे और देखते थे कैसे करना है, क्या होगा. पर उसके बाद में कभी किसी ने कुछ नहीं किया ऐसे. लेकिन इट्स अ ग्रेट थिंग दैट आजकल के बच्चे इतने वो हैं, प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि वो इतनी क्लासेस करते हैं, एक्टिंग सीखते रहते हैं, डिक्शन सीखते रहते हैं और अपने आप को तैयार रखते हैं. तो आजकल ज़माना ऐसा हो गया कि आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए. मैंने भी जब मेरा करियर चल नहीं रहा था तो मैं एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फंड ही नहीं कर रहा था उस फिल्म को.
तो मैंने बोला क्या करूँ, मैं चल ही जा रहा है, इतना 1 साल हो गया, तो मैंने बोला चलो मैं एक्टिंग क्लासेस करता हूँ। तो मैंने भी एक्टिंग क्लासेस की, बिकॉज एज एन एक्टर कितना भी कर लो आप हमेशा सीख रहे होते हो और अपने आप को समझ रहे होते हो। जितना आप अपने आप को समझोगे उतने आप उस इमोशन को समझ पाओगे जो आपके अंदर है। तो उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ शायद, क्योंकि मैंने देखा है फेलियर, और उस वक्त सब कुछ अपने आप चल रहा था। लेकिन अब पता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। And I must say, I'm pretty sure everybody's gonna agree that you are giving the younger generation of actors a run for their money. No, That's all. It's not like that. मैंने हमेशा It is. I just feel no. I'll take this. I know that you will feel overwhelmed with this comment, but the point is that everybody sitting here will understand that जिस level का एक euphoria, एक aura है with the generation of actors, like you guys are the last of that, because I think it's social media, whatever, the exposure has been so much that वो मिस्टेक हट गया है। आप लोगों से अभी भी मिलके लगता है कि यार कॉन्वर्सेशन बहुत अलग होगा। जो आज के जनरेशन के बच्चे, उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, वो पैदा इसी वक्त हुए हैं जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया। वो पैदा ही होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल था और उनको बस यही है कि हमको खबर अगर पता करनी तो फ़ोन पर है सब कुछ। तो सब कुछ बदल गया है, इसलिए तो मैं भी इंस्टाग्राम पर हूँ, क्योंकि मुझे ऑडियंस से कनेक्ट करना है। आप लोगों ने यहाँ पे बैठे बैठे कितने लोगों ने अभी तक रील्स बना ली होती आज दिन की। पर ये हो गया अभी। ये तो आज मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं। मैंने बोला यार हटो यार, ये रोड है। फिर मैं सोचता हूँ यार, शुरू में फ़ोन होते नहीं थे तो लोग ये एक बॉडी का हिस्सा नहीं थे, अब वो एक बॉडी का ऑर्गन बन गए हैं कि आपको कहीं भी जाओ फ़ोन होता है। You know, so it's becoming like that. So you have to move at times, but it's sad because of everything that's happening, the AI, intelligence, and all this stuff happening, where people are losing the originality and the honesty and the real feel of life, you know. ये कोई बात नहीं। हेलो देवल भाई, मैं संजय रोकड़े हूँ, इंदौर से हूँ, बॉलीवुड म्यूजिक टुडे से। तो ये जो आश्रम में कहानी सुनते सुनते पुलिस ऑफिसर में एक दिमाग अटक गया था और फिर एकदम से सुना कि भैया मुझे तो बाबा बनना है। तो ये कैसा फिर आपने आपको तैयार किया? और दूसरा, आश्रम को आप आपके करियर में कैसा टर्निंग पॉइंट मानते हैं? और दूसरा, अभी जो ये मंच पे जो आंसू छलक गए थे ना आंखों से, तो वो क्या इंसिडेंस था जो सनी देओल के प्रति आपका आंसू आ गया? क्या माँ का वात्सल्य था? बाप तो आपने बोल ही दिया था कि पिताजी के समान उन्होंने जो भी मुझे गाइड देना था, पर वो क्यों आ गए? मैं जानना चाह रहा था कि वो क्या इंसिडेंस था बचपन का। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है भैया के साथ और हर मोड़ पे उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है। हेल्प तो नहीं, मतलब एक रिश्ता निभाया है। और जब भाई ऐसा करता है, जैसे मेरी पहली फिल्म लग रही थी तो उन्होंने अपनी शूटिंग सब रोक दी और मेरी फिल्म की प्रोडक्शन में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। ऐसा कोई करता नहीं, क्योंकि उनका भी करियर था और उन्होंने मतलब मेरे करियर पे ज़्यादा ध्यान दिया था जब मेरी पहली फिल्म बन रही थी। और आश्रम की जब मैं कहानी सुन रहा था तो ऑब्वियसली कि होता है ना कि कभी मुझे उस टाइप के कैरेक्टर्स नहीं मिले प्ले करने के लिए, और इंडस्ट्री में हो जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में, कि ये हीरो ऐसा है तो इसको ऐसी रोल मिलने चाहिए, ऐसी रोल करने चाहिए, दूसरा करेगा तो शायद ऑडियंस इसको पसंद नहीं आए। तो जब मैं कहानी सुन रहा था तो मुझे लगा चलो पुलिस ऑफिसर का रोल तो मिल ही गई, अगर कुछ ना मिला। पर प्रकाश जी ने पहले से दिमाग में रखा था कि वो मुझे बाबा बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की मेरी पर्सनालिटी है और जिस किस्म की फिल्में की हैं मैंने, उनको पता था कि जब ये कैरेक्टर प्ले करेगा तो कोई विश्वास नहीं भी करेगा, और क्योंकि बाबा होते ही ऐसे ज़्यादातर देखा जाए। हम अनविश्वास रखते हैं उनमें, हम उनके चेहरे को देखते हैं तो उनपे कुछ सब इनोसेंस ही दिखता है सबको, लेकिन उनकी बातों से तो शायद मेरे चेहरे पे वो इनोसेंस है, पता नहीं। टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से एज एन एक्टर, जब मैंने पोस्टर वॉइस की थी
तब मैं समझा था अपने आप को सबसे ज़्यादा, क्योंकि पोस्टर बॉयज पता नहीं शायद सबने देखी नहीं होगी, एक अच्छी फिल्म थी, श्रेयस तलपड़े ने डायरेक्ट की थी, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट की थी, और उस वक्त कुछ काम नहीं मिल रहा था इतना, जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे वो ऐसे थे कि मैं कर ही नहीं पाता, लेकिन पोस्टर बॉयज में मुझे चांस मिला था एक अलग किस्म का कैरेक्टर प्ले करने को, तो मैंने बहुत मेहनत की, मैं उसके बाद वर्कशॉप्स करता था हर दिन, और तब रियलाइज़ हुआ कि वर्कशॉप्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं, और आप इट्स लाइक बैट्समैन नेट प्रैक्टिस क्यों करते हो, यू नो, यू हैव टू perform, you have to bat, you have to keep playing the same ball again and again and again and again, even though you're good at it, you have to still play it because you have to become the best at hitting that shot. So that was my turning point as an actor, as my thought process changed, the way I process myself as an actor. And then I got Salman ने फिर, मतलब सलमान को तो मैं हमेशा थैंक यू बोलते रहा हूँ ज़िंदगी भर, सलमान ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और बोला मामू शर्ट उतारेगा, मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा, तो बोलता आजा कर मेरे घर, तो उस वजह से मुझे रेस 3 मिली, और क्या है कि इतने सालों मैंने काम नहीं किया था, तो यंगस्टर्स मुझे इतना पहचानते नहीं थे, तो मुझे मालूम था जब मैं सलमान की फिल्म में होऊंगा तो कितने करोड़ों लोग देखेंगे मुझे, और वो टर्न अराउंड तो नहीं था, लेकिन एक किस्म से लोग मुझे पहचानने लगे फिर से, और उसकी वजह से मुझे हाउसफुल 4 मिली। फिर भी मैं खुश नहीं था एज एन एक्टर, बिकॉज आई वाजंट फाइंडिंग इट चैलेंजिंग, और आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ, आई वांटेड टू डू कैरेक्टर्स, तो जब मुझे क्लास ऑफ 83 मिली, आई थिंक दैट्स वेयर एवरीथिंग बिगैन फॉर मी, एंड फिर आश्रम। Thank you, sir. Lovely question. Hi. Hi, everyone. Hello, sir. Hello. First of all, congratulations for your entire life and entire Thank you. everything. So this question is from your real life, actually. Once you have been asked a question like, what would you like to be in your next birth, and you were like, you want to be only a Bobby Deol. Okay, so today, what do you say? What would you like to be? Like that previous Bobby Deol, like that Bobby Deol 2.0, and second, sorry to interrupt. And the second one, and what do your children think about yourself? Like the previous one and Bobby 2.0. देखिए, अगली बार जब अगर दोबारा जन्म हुआ तो मैं बॉबी देओल बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसी परिवार में पैदा होना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप यही हो, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें यही हो, मेरे चाचा चाची सब, तो मैं हमेशा इसलिए ये कहता हूँ कि मैं अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं बॉबी देओल बनूंगा, और 2.0 या नो 2.0 वो तो मैं बचपन में जब पैदा होऊंगा तो पता नहीं होगा मैं क्या हूँ। वो चाहता हूँ कि मैं समझदार रहूँ बचपन से ही, और ध्यान रखूँ अपने ऊपर ज़्यादा, पर ये मैं अभी भी नहीं कह सकता कि मैं दूसरे जन्म में 2.0 होऊंगा या नहीं, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं इसी परिवार में पैदा हूँ। We'll do one thing because I know everybody wants to ask a question. Whoever screams his name the loudest, we'll give him. ये किसने बोला? ये किसने बोला? अभी वाला? आपने बोला? दे दो माइक उनको। And one question so that we can get a lot more people to ask the questions. Huh? जपनाम बाबा जी। जपनाम सदा ही जय। बाबा जी जो आपने कैरेक्टर प्ले किया ये हमारे गांव के 60 किलोमीटर दूर का ही था, अगर आपको पता हो तो। मैं ये 7 किलोमीटर दूर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में कोई ना कोई ऐसा इंसान जो इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे गांव के 7 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर कितने बैठे होंगे जो उनके 7 किलोमीटर दूर होंगे। इस कंट्री में ऐसे काफी लोग हैं जो इनोसेंट लोगों का फायदा उठाते हैं, तो उनके सारे कहानियों से उठाकर, क्योंकि हर 7 किलोमीटर दूर वाला एक जैसे ही होता है, उन्हें वही सब बुराइयां होती है जो तेरे 7 किलोमीटर दूर वाले होते हैं। और बाबा जी मैं ये पूछना चाहता था, ये जो काशीपुर वाले बाबा जी का जो कैरेक्टर था, इसको प्ले करने में आपको कितना आनंद आया? तो एक काम कर मेरे आश्रम आ जा, मदद
लड्डू खिलाता हूँ। बाबा जी लड्डू तो सिर्फ आप लड़कियों को ही खिलाते थे ना? इसका मतलब तूने वेब सीरीज ठीक से देखी नहीं, तेरा ध्यान सिर्फ लड़कियों पर था। What's your name? Very good, very good. Can we have one of the ladies asking, because actually give it to that person in the back. I can see. अभी मेरे को आंखों में दृष्टि है थोड़ी सी. That you only yeah. Give us the mic, somebody. Hello, my name is Srishti Keshri, sir. Why the cheer? I want to know the inside joke. Well, Yeah, you said Drishti, that's why. oh. Yeah. Hi, sir. My name is Srishti Keshri. I'll ask you a quick question. Which is the most challenging role you have ever played? And the second question is, after Ashram, you are continuously doing the negative roles, like Love Hostel also. So how you prepare for negative character? What was the first part of the question? What is the most challenging role? Which is the most challenging role you have ever I played? think the most challenging time I ever had was doing the film called Deol with my brother. Because भैया मुझे इतना मतलब he knows me inside out. He knows मुझे हर मेरे रग रग से वाकिफ है वो. तो उनके सामने जब एक्टिंग करता था तो वो कहते थे नहीं भाभी तू फील नहीं कर रहा, तू फील नहीं कर रहा. क्या फील नहीं कर रहा, मैं पक जाता था भैया. पर इसीलिए मेरे हिसाब से मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस मैं आज भी कहता हूँ कि दिल लगी में थी. शायद आप माने या ना माने, लेकिन एज एन एक्टर आई फेल्ट दैट वाज समथिंग आई रियली एंजॉयड व्हेन आई सॉ द फिल्म. What is the second question? The second question Negative is character. Negative character. How How do you you prepare for negative character? देखिए नेगेटिव कैरेक्टर में भी अच्छाई होती है. तो और जब भी मैंने प्ले किए हैं, जैसे मैंने आश्रम भी किया था और पापा का रोल किया, तो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया क्योंकि मैं वो दिमाग में रखता हूँ कि एक बुरा इंसान में भी कुछ अच्छा होता है जो लोग पसंद कर सकते हैं और बुरा फील करते हैं कि ये वो अच्छापन क्यों नहीं दिखाता. और लव होस्टल में भी मैंने ऐसे ही किया था. बट नेगेटिव कैरेक्टर्स में काफ़ी आई थिंक दे मोर फन, नॉट बिकॉज कभी नेगेटिव कैरेक्टर्स मिले नहीं तो एकदम से नेगेटिव कैरेक्टर्स मिल गए. पर प्रिपेयर करना तो हाँ, जब मैं आश्रम कर रहा था तो कभी कभी शुरू में जब मैं शूटिंग से वापस आता था तो आई यूज्ड टू फील रियली डिस्गस्टेड विद माई सेल्फ. आई यूज्ड टू फील लाइक जब मैं कर रहा था तो आपको अपने दिमाग सोच सब कुछ वो कैरेक्टर प्ले करने के टाइम वो सब ऐसे सोचना पड़ता है और आप उसमें आपको घिन आती है अपने आप से. लेकिन फिर शाम को आता था और वही एक्टर्स जिनके साथ मैंने वो सीन्स किए, वो हम लोग आउटडोर्स पे थे ज़्यादातर, तो उनके साथ बैठकर खाना खाना, मस्ती करना, मजाक करना. तो मैंने बोलते नहीं है सब ठीक है, मैं वो बन नहीं गया उसे मैं प्ले कर रहा हूँ. बट इट्स डिफिकल्ट बट आई एंजॉयड दैट. अभी पता यही होता है ना जब इंडस्ट्री में, जैसे मैं कह रहा था, आपको आपकी एक इमेज बन जाती है, फिर ऐसे कैरेक्टर ज़्यादा ऑफर होते हैं. मैं चाह रहा हूँ क्लास ऑफ 83 जैसा कोई कैरेक्टर मिले मुझे, पर वैसे कैरेक्टर्स आएंगे तो मैंने शुरुआत ही की है दोबारा. सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर आई गेस. Okay, one more question, please. Hello. भावी जी कहाँ? इस साइड. भावी इस साइड. केशव राय. हेलो. आपने जीवन में अभिनय की दुनिया में बहुत उतार चढ़ाव देखे. धर्म जी और सनी जी ने भी शायद नहीं देखे. उसके बाद भी आपका जो धैर्य है वो बहुत सराहनीय है. अब आपने कई हिट फिल्में भी दी हैं. हिट का मापदंड क्या है? जैसे कि जब आपको कोई कहानी सुनाता है, जब आपको पसंद आता है कि फिल्म हिट होगी, या शूटिंग पे पहुंचते ही कलाकार को एहसास हो जाता है कि फिल्म कहाँ जाने वाली है. तो ऐसा कई बार या कितने बार हुआ है कि जब आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, एक्टर आप हैं, डायरेक्टर अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, और उसके बाद भी वो फिल्म को जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिली, इसका क्या कारण दिखता है? इसका कारण अगर पता होता तो हम वैसी फिल्में करते ही नहीं. यही तो प्रॉब्लम है एक्टर की कि हम कभी फ्यूचर तो देख नहीं सकते, फॉर्च्यून टेलर तो है नहीं हम. मैं वही फिल्में करता हूँ जहाँ मुझे एज एन एक्टर हर दिन सेट पर जाकर एक मज़ा आता है काम करते वक्त. और कभी कभी होता है, हम काफ़ी फिल्में जो मैंने की हैं इतनी सारी, तो
कोई फिल्म जब मैं कर रहा था तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था, और जब वो फिल्म बनी और लगी तो वो हिट्स हो गई। फिर कोई फिल्म थी जिसमें मुझे फिर भी मज़ा आ रहा था और लगी और फ्लॉप हो गई, तो इसका कभी आपके पास कोई आंसर नहीं है। तो जब लगान फिल्म आशुतोष गवारीकर ने आमिर खान को सुनाई तो आशुतोष गवारीकर ने कहा कि यार ये फिल्म नहीं बना सकते, चलेगी नहीं। 6-8 महीने बाद फिर आमिर खान ने आशुतोष गवारीकर को कहा कि जावेद साहब अगर कह देंगे तो मैं फिल्म बनाऊंगा। तो जावेद साहब को आशुतोष गवारीकर ने कहानी सुनाई। सुनाने के बाद जावेद साहब ने कहा कि लगान सुपर डुपर फ्लॉप होगी ये फिल्म अगर तू बनाएगा तो, और वो फिल्म इतनी हिट हुई। तो एक बार मैंने ही एक फेस्टिवल में आमिर खान से बात कही थी कि सर ऐसा हुआ तो फिर इतनी बड़ी चुनौती इतनी हिट कैसे हो गई। फिर उन्होंने 10-12 पॉइंट बताए उसके, मार्केटिंग, प्रमोशन, कॉस्ट्यूम, सब कुछ बताया कि ये कारण होता है कि फिल्म हिट होने के लिए ये भी जरूरी है। नहीं, ऐसे तो कारण बहुत होते हैं, कितनी फिल्मों की कितनी मार्केटिंग होती है, लुक डिज़ाइन होता है, लेकिन वो चलती नहीं है। तो हम इसका कभी आंसर दे नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वो चल गए, तो उसने कहा कि आपने वो सवाल पूछा तो उन्होंने ये सब एग्जांपल्स दी कि ये ठीक था, ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन आजकल तो सब लोग सब कुछ करते हैं, कुछ ज़्यादा ही करते हैं कभी कभी, फिर भी फिल्म नहीं चलती। ऑल आउट। अच्छा, एक लास्ट सवाल होगा, उससे पहले आप लोग चिल्ला दो उनका नाम और बॉबी सर खुद ही डिसाइड करेंगे कौन सा करेगा। मैं डिसाइड नहीं कर सकता, जो खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ ले मैं उसका जवाब दूंगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज कैन वी जस्ट गिव हिम द माइक यार। बॉबी बेटे कहाँ था अभी तक? बड़ा अच्छा लगा यहाँ आया, बड़ी अच्छा लगता है जब कोई मेरे बेटे की इतनी सराहना करता है। देखो मेरे बच्चे काम अच्छा करते हैं, लेकिन जो आश्रम में काम किया वो मत करना बेटा। एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे ये नहीं कहा, जब उन्होंने जब देखा शो और जब रिएक्शंस देखे माफी चाहता हूँ चले। ठीक है, तो उन्होंने कभी तो बहुत खुश हुए कि एज एन एक्टर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उनको इतने फोन कॉल्स आए और बहुत खुश हुए। आज तक इतने खुश हैं। और मेरे भैया ने मुझसे कहा जैसे गदर मेरे लिए थी वैसे आश्रम तेरे लिए। Okay, now I have a better thing to do with you guys. We will make him dance. No, I can't. I am definitely. I don't dance anymore. I don't dance. But I'm gonna make you dance with Nayo. Come on, we have to do this. They have. I love you guys, but I don't think I can dance. We'll just do the hook step a little bit. I don't even remember the hook steps, man. I don't remember. I will do it for you. Don't worry. No, sorry, I won't be able to dance. Sorry, I'm really sorry. I'm being But then we'll do one more question at least. Last question. We'll do a last question. बोलो उनको माइक। हाय सर, myself आशीष डाबोदिया, मैं बड़ौद बागपत से हूँ। सर आपने 75 mm से OTT तक काम किया है, तो आपको कितना बड़ा फर्क लगता है और आपको किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मुझे फर्क लगता नहीं, जब मैं शूटिंग कर रहा होता तो मैं ये नहीं सोच रहा कि ये छोटे पर्दे पे आ रही है या बड़े पर्दे पे आ रही है, क्योंकि काम करते वक्त जो सिस्टम है वो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें, तो कभी ऐसा सोचा नहीं। बस यही है कि OTT पे आपको कैरेक्टर्स जो मिलते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलते हैं, उनमें ज़्यादा डेप्थ होती है इन द सेंस दैट एपिसोडिकली वो बनते हैं, तो आपका ग्राफ ज़्यादा अच्छा होता है और टू परफॉर्म, और बाकी जो एक्टर्स हैं आपके साथ उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ऐसे इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म जब आया तो कितने एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, हमने इतने अच्छे टैलेंट्स देखे हैं हमारे इंडस्ट्री में, जो अगर मैं वही कहता हूँ, IPL में नए क्रिकेटर्स आते हैं, लोग उनको देखते हैं, फिर उनको इंडियन टीम में ले लेते हैं, तो IPL है, OTT और इंडियन टीम में आ गए तो अब सिनेमा में आ गए। Thank you so much. Take 2 more questions quickly.
आपने तो पूछा है पिछले में। अच्छा इनको दे दो इनको। अरे देखो एक चीज मैं बताऊं, इधर आके एक बार देखना कि लाइट के वहां पे कुछ दिख रहा है कि नहीं। वो तो मेरे अंधे होने का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो दिख ही नहीं रहा है किसी मुझे भी नहीं दिख रहा कुछ भी एक्चुअली। Hi sir, I'm Namrata Agarwal. Hi. First of all, so nice to meet you. Okay, I'll take a quick question. आपने workshops और acting classes का mention करा कि आपने करा था, तो आप बता सकते हैं आपने किसके acting classes या workshops आप क्या recommend करेंगे? मुझे एक्चुअली सबके नाम याद नहीं। कोई भी एक। मैंने एक्चुअली जब मैं पोस्टर बॉयज कर रहा था तो श्रेया से बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो उनके साथ एक किस्म से एक्टिंग क्लासेस ही कर रहा था मैं। और फिर जब मैंने आश्रम की तो मैंने एक्टिंग क्लासेस नहीं ली, मैंने सिर्फ डिक्शन क्लासेस ली, क्योंकि मुझे अपनी हिंदी जो उसमें शुद्ध हिंदी बोलते हैं उसको समझने के लिए, उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए मैंने 2 महीने तक वो प्रैक्टिस की, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था। पर एनिमल के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगी, मैं कुछ नहीं बता सकता। जब फिल्म आएगी तो आप आई एम वेरी श्योर, पता नहीं मैं कभी इतनी बड़ी महफिल में ये कहता नहीं, बट आई हैव अ रियली गुड गट फीलिंग अबाउट एनिमल। We have a good gut. हाँ मैंने बोला है उनको, देखो हाँ बट एक बार उनको मौका देते हैं, बिकॉज हमको सच में यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे। ओनली 1 person I can't see, whoever has a good question just ask. ये देखो सर, अब दिखाई दे रहा है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, शैडो ही दिख रहा है, बट क्वेश्चन कर। हेलो सर, हेलो, माय नेम इज सारिका, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब पॉजिटिव कैरेक्टर करते हो और नेगेटिव कैरेक्टर करते हो तो आपको मतलब कैसा फील होता है, और आपको सबसे अच्छा कौन सा कैरेक्टर लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मेरे को एज एन एक्टर चैलेंजिंग कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और एक हर इंसान में अच्छाई होती है और बुराई होती है, और जब आपको उस बात की समझ हो जाती है तो आप जब नेगेटिव करते हैं तो आपके अंदर जो इट्स ए ह्यूमन इनबिल्ट थिंग कि आप सब ग्रीडी, सेल्फिश, ईगोइस्टिक सब होते हैं, ऐसे सबके अंदर होता है। लेकिन आप अच्छा इंसान तब बनते हो जब आप वो इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो। एंड आई थिंक एज एन एक्टर व्हेन यू परफॉर्मिंग दीज कैरेक्टर्स नेगेटिव, तो आप उसको छोड़ देते हो, खोल देते हो, और आप वो फीलिंग्स ले आते हो। और जब आप अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो ज़िंदगी भर आपको अच्छा बनने का शिक्षा मिली है, तो आप उसको दिमाग में रख कर आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ में, यू नो, एक्सपीरियंसेस इन लाइफ ब्रिंग अ लॉट ऑफ रियलिटी टू द इमोशंस। आई थिंक that's how I kind of perform these acts. I like both negative and positive. Right now I'm dying to do some positive stuff, so I'm hoping that log mujhe kuch strong positive characters to play karne ko. And on that note, before we actually say goodbye to you, I want to take this opportunity to tell you that everybody in that house is genuinely a nice human being, but you've been the nicest to me always, and it is मैं कैसे बोलूँ ये, but आपके साथ जो मिलते हैं they go back feeling very fonder of you and gentler by their heart, and this is all that I'll say, that Bobby Deol has been an emotion, is an emotion, and will always remain an emotion. Thank you for doing this, and thank you for being you. Thank you for being you yourself. And every time I've met you, you're such a sweetheart. And always been the same. So, and मैं यहाँ अपनी अच्छाई करने के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया था। So मुझे ऐसा महसूस करके मैं, you know, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, सब में सब कुछ है। That's true, sir, and thank you. We'll call Vinod sir from the Jagran Film Festival team, Jagran team, to facilitate you. Thank you, everyone. We'll also call Basant sir to felicitate Bobby sir. ए भाई बैठ ना। हाँ जी। ए भाई बैठो। तुम नहीं बैठो।
मिनट